فاخرہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس کا گھر میرے گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ میں چھت پر چڑھتی تو اس کا گھر صاف دکھائی دیتا اور چھت پر کھڑی ہو کر میں اس سے کافی دیر تک بات چیت کرتی رہتی۔ جب ہم لوگ یہاں پر نئے رہنے کے لیے آئے تھے اس وقت سب سے پہلے میری دوستی فاخرہ سے ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور ویسے بھی دل کی اچھی لڑکی تھی، اسی لیے مجھے اچھی لگتی۔ گھر بھی اس کا پیچھے تھا تو میں جب بھی چھت پر کسی کام سے جاتی تو وہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ وہ بھی اپنے گھر سے اپنی چھت پر آ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ میں کبھی بھی گلی سے گزر کر اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ میں اپنی چھت سے اس کے گھر کی چھت پر چھلانگ لگاتی اور اس کے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس کے گھر چلی جاتی۔ وہ بھی اسی طرح سے اسی راستے سے ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ گھر میں میرا اکیلی کا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ میں ایک ہی بہن تھی اور میری اماں بھی سارا وقت اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اماں کماتی تھیں تو ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ میرے ابا کا تو کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میری امی نے ہی پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور پورے گھر کو سنبھالا تھا۔ میری عمر صرف 17 سال تھی اور یہاں آ کر میں نے قریب ہی ایک کالج میں داخلہ لیا۔ فاخرہ کے ساتھ ہی کالج جایا کرتی تھی۔ وہ بھی تقریباً میری ہی عمر کی تھی۔ وہ دکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے محلے کے تقریباً سبھی لڑکے اسے پسند کرتے تھے اور یہ بات اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھے پتہ چل گئی تھی۔ دیکھنے میں شکل و صورت کے لحاظ سے تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن مجھے کبھی بھی ان ساری چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں جس ماحول سے آئی تھی وہاں پر ان ساری باتوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے میں نے کبھی کسی پر توجہ نہ دی۔ لیکن فاخرہ کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی میں کسی ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس کے لیے آپ سب سے زیادہ ضروری ہوں، جو انسان باقی سب لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہو، آپ کی فکر کرتا ہو۔ فاخرہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور رات کو اس سے فون پر بات بھی کرتی۔ یہ بات اس نے مجھے بتائی تھی۔ میری اماں جب گھر پر نہ ہوتی تو فاخرہ چھت سے ہمارے گھر آ جاتی اور ہمارے گھر آ کر گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر اسی لڑکے سے باتیں کرتی۔ پہلے تو میں اسے سمجھاتی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور کالج میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کو پسند نہ کرتی ہو۔ اور اب ہم لوگ بڑی ہو گئی ہیں، ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں خود ہی اپنے لیے کوئی ایسا انسان تلاش کرنا چاہیے جو ہم سے محبت کرتا ہو اور ہماری ہر خواہش کو پورا کرے۔ فاخرہ نے مجھ سے کہا کہ شادی تو ہمیں ایک دن کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ وہ شادی اپنی مرضی سے کی جائے، کسی ایسے انسان کے ساتھ کی جائے جس سے ہم محبت کرتے ہوں، تو زندگی اور بھی اچھی گزرے گی۔ ورنہ والدین کی مرضی سے تو شادی ہو ہی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ ہماری زندگی اچھی نہ گزرے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی اور میں نے بھی اس بارے میں سوچا وہ غلط نہیں کہتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہی اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دے گا، اسی لیے میں بھی اس کی اس معاملے میں مدد کر دیتی۔ جب بھی اسے بات کرنی ہوتی تو وہ ہمارے گھر آ جاتی کیونکہ اماں گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی وہ محلے میں کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر۔ میری اماں ایک جانی مانی دائی تھی، لوگ ان کو بہت تجربے کار خاتون سمجھتے تھے، اسی لیے میری اماں پورے محلے کا چکر لگاتی۔ محلے میں جو بھی حاملہ عورتیں ہوتی ان سے ان کا حال احوال پوچھتی رہتی کیونکہ یہی ان کا کام تھا۔ یہیں سے میری اماں اتنا پیسہ کما لیتی تھیں کہ ہم ماں بیٹی کا بہت اچھا گزارا ہوتا تھا۔ میری اماں نے بچپن سے لے کر اب تک میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ان سے کسی چیز کی فرمائش کروں اور وہ انکار کر دیں۔ میرے کہنے سے پہلے ہی ہر چیز میرے لیے لے آتی، میری بہت تعریف کرتی اور انہوں نے ہمیشہ مجھے ہر چیز سے بچا کر اور سنبھال کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے گھر کے زیادہ کام کاج بھی نہ کرنے دیتی کہ کہیں میرے رنگ پر فرق نہ پڑے اور میری خوبصورتی اس سے متاثر نہ ہو۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور وہ اس کی شادی بھی اچھے اور بڑے گھر میں کریں گی۔ مجھ سے زیادہ تو میری خوبصورتی کی میری اماں کو پرواہ تھی، وہ مجھے اس میں ذرا سا بھی لاپرواہی نہ برتنے دیتی۔ جیسے ہی میں کالج سے واپس آتی تو وہ فوراً مجھ سے یہ کہتی کہ میں اپنا چہرہ دھو کر آؤں۔ رات کو سونے سے پہلے وہ مجھے کریم لگانے کا کہتی۔ مجھے یہ سارے چونچلے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ رنگ کے لحاظ سے میں ٹھیک تھی، مجھے لگتا تھا کہ مجھے ان ساری کریموں کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی اچھی لگتی ہوں۔ لیکن میری اماں مجھے یہی بات سمجھاتی رہتی تھی کہ اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو یہ خوبصورتی برقرار نہیں رہے گی۔ کسی بھی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اسے وقت دینا پڑتا ہے، اور اگر ہم کسی چیز میں لاپرواہی برتتے ہیں یا پھر اس کا خیال نہیں رکھتے تو وہ یا تو کم ہو جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو اماں کی عجیب و غریب باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھی، مگر خیر میں پھر بھی اپنا خیال رکھتی تھی کیونکہ میری سہیلی فاخرہ
वो भी मेरी अम्मा ही की तरह थी। उसे हर वक्त यही फिक्र सताती रहती कि कहीं उसका रंग काला ना हो जाए, उसके चेहरे पर कोई दाना ना निकल आए। इसी वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीजें खाती भी नहीं थी जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचे और उसके रंग में कोई फर्क आए। मैं क्योंकि सारा वक्त अपनी अम्मा के साथ गुजारती थी और घर में मेरे और अम्मा के अलावा कोई होता भी नहीं था कि जिसका साथ मैं बैठ जाऊं और अपना वक्त गुजारूं। अम्मा ही होती थी। बचपन से ही मैं हर वक्त उनके साथ साथ और उनके पीछे पीछे रहती थी। क्योंकि मेरी अम्मा एक दाई थी, इसीलिए हामला औरतें हमारे घर आती जाती रहती। मेरी अम्मा से इस बारे में बातें भी करती थी। अम्मा ये समझती थी कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे किसी बात की कुछ समझ नहीं लगती, इसीलिए उन्होंने कभी भी मुझे वहाँ से भेजा नहीं था। घर में कोई और होता भी नहीं था कि अम्मा मुझे उसके पास भेज देती, इसीलिए मैं उन्हीं के पास बैठकर सारी बातें सुनती रहती। इस तरह से वक्त गुजरता गया और मेरी अम्मा को अंदाजा ही नहीं हुआ था कि कब मैं छोटी से बड़ी हो गई थी और अब मैं सारी बातों को समझने लगी थी। उन सारी बातों को सुनते हुए मैं बड़ी हुई थी, इसीलिए कम उम्र होने के बावजूद मैं औरतों के बहुत से राज जान गई थी। लेकिन मैंने कभी भी उन बातों का जिक्र अपने कॉलेज में अपनी सहेलियों में से किसी से भी नहीं किया था। फाखरा से भी मेरी जो बात होती थी वो हमारी अपनी बातें होती थी, या फिर वो मुझे उस लड़के के बारे में बताती रहती जिससे वो बात करती थी। उसकी दी हुई चीजें मुझे दिखाती और ये बताती कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है। फाखरा उससे बात करते बहुत खुश रहती थी और उसकी देखा देखी मेरा भी दिल करता था कि कोई मुझसे भी इसी तरह से मोहब्बत करे। अम्मा के पास इतना वक्त नहीं होता था, वो तो सारा दिन या मोहल्ले में घूमती रहती थीं और अगर घर पर मौजूद होती तो घर में औरतें आती जाती रहती और उनके साथ बैठकर उनके मसले हल करती रहती। मैं बड़ी हो रही थी, ऐसे में भी चाहती थी कि कोई मेरी तारीफ करे। मैं इतनी खूबसूरत थी, मेरा हुस्न काबिल तारीफ था, लेकिन कोई मेरी तारीफ ना करता। अम्मा मुझे अपने साथ बाहर लेकर ही नहीं जाती थी। हमारे रिश्तेदार तो दूर दराज के शहरों और इलाकों में रहते थे, उनके घर तो हमारा कभी जाना हुआ ही नहीं था और मोहल्ले में भी अम्मा अपने काम से जाती थी। ऐसे में वो मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जाती। मेरा सारा वक्त तो घर में गुजरता था और घर में हमारे औरतों के अलावा किसी का आना जाना नहीं था। मैं जब अपने कॉलेज से निकलती तो रोजाना ही एक लड़का मुझे कॉलेज के बाहर खड़ा मिलता। ऐसे लगता था कि जैसे वो मुझे ही देखता है। कुछ दिनों तक तो मैं उसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन अब तो मैं उसे रोजाना ही उस जगह खड़े देखती और उसकी नजरें मेरे ऊपर होती। मैं अपने आसपास देखती, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती थीं। छुट्टी के वक्त कॉलेज के बाहर रश लगा होता था। अब मुझे इस बात का भी पक्का यकीन नहीं था कि वो मुझे ही देखता है। हो सकता है कि वो लड़कियों के हुजूम में किसी और को देखता हो और मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे देखने के लिए यहाँ आता है। इस बात को सोचकर मैं बहुत खुश होती थी कि कोई तो था जो मुझे देखने के लिए वहाँ पर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता था। मगर जब भी ये सोच मेरे दिमाग में आती कि हो सकता है वो किसी और के लिए खड़ा होता हो, तो एकदम से मेरा चेहरा उतर जाता। मुझे भी अपनी जिंदगी में फाखरा की तरह कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता और मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, मुझसे मोहब्बत करता और मेरा ख्याल रखता। एक दिन इसी तरह से मैं फाखरा के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी जब वही लड़का अचानक से मेरे सामने आ गया और उसने खत मेरे हाथ में थमा दिया। मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फाखरा ने मुझे इशारा किया कि मैं ये खत ले लूं। मैंने खामोशी से उसके हाथ से वो खत पकड़ा और हम लोग घर वापस आ गए। उस खत के ऊपर मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी जिसमें मेरी बहुत सारी तारीफ की गई थी। उसने ये भी लिखा था कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ और वो रोजाना मेरे लिए यहाँ आकर खड़ा होता है। उस खत में उसने आखिर में अपना नंबर भी लिखा था कि अगर मैं चाहूँ तो उस नंबर पर उससे बात कर सकती हूँ। दिल ही दिल में मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि कोई मुझे पसंद करने लगा था, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं इनकार करती रही। जब फाखरा ने मुझे कहा कि मैं उसमें कोई बुराई नहीं है, वो मुझे पसंद करता है, मैं उससे एक मर्तबा बात करके देख लूं, हो सकता है कि मेरी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाए और मुस्तकबिल हमारा एक साथ अच्छा गुजरे। चाहती तो मैं भी ये थी कि मैं उस लड़के से एक बार बात करूं, लेकिन फाखरा की वजह से मैं थोड़ी सी झिझक का शिकार थी। लेकिन अब जबकि उसने मुझसे ये कहा था तो मैं फौरन से मान गई। मेरे पास फोन नहीं था। फाखरा ने मुझसे कहा कि जब वो मेरे घर आएगी तो अपने फोन से मेरी बात करवा देगी। मैं बहुत खुश हो गई और फिर अगले दिन से ऐसा होने लगा कि वो मेरे घर आती और मेरी भी उस लड़के से बात करवा देती। इसी तरह से बात करते करते बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने उसके साथ जीने के सपने देख लिए थे और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। हम दोनों सहेलियां मिलकर ढेर सारी बातें करती। आतिफ अब भी रोजाना ही मेरे कॉलेज के बाहर खड़ा होता था, लेकिन उसके साथ एक और लड़का भी होता था। उसने मुझे बताया कि ये उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। एक मर्तबा आतिफ ने मुझे मिलने के लिए भी बुलाया, मगर मैंने बहाना बनाकर टाल दिया। मैं उससे अभी मिलने नहीं जा सकती थी, जबकि उसका वो दोस्त रोजाना ही उसके साथ कॉलेज के बाहर मौजूद होता। वो लड़का अजीब सी नजरों से मुझे देखता था। मुझे उसका देखना पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि वो आतिफ का बहुत अच्छा दोस्त था इसीलिए मैं खामोश रहती और कुछ न कहती। आतिफ ने मुझसे वादा किया कि वो जब भी शादी करेगा
मुझसे करेगा, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है। कभी कभार वो मेरे लिए तोहफे तहाइफ भी ले आता। उन तहाइफ को मैं छुपाकर घर ले आती। अगर अम्मा कभी गलती से देख भी लेती तो मैं ये कह देती कि फाखरा ने मुझे दिया था। फाखरा भी अपने घर में यही कहती थी कि मैं उसे तोहफे तहाइफ देती हूँ। हम दोनों सहेलियां एक दूसरे के राज छुपा लेती और अब तक किसी को भी इस बात का इल्म नहीं हुआ था। जिंदगी इसी तरह से चल रही थी जब एक दिन ऐसा हुआ कि फाखरा घर से मेरे साथ कॉलेज तो गई, लेकिन कॉलेज के गेट पर उसने मुझे कहा कि मैं अंदर चली जाऊं। आज वो मेरे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि आज उसे उस लड़के से मिलने के लिए जाना था जिससे वो मोहब्बत करती थी। वो पहली बार उससे मिलने जा रही थी। मैंने भी कभी उसके किसी मामलात में मदाखलत नहीं की थी। खामोशी से मैं कॉलेज के गेट के अंदर चली गई और वो उस लड़के से मिलने के लिए चली गई। उस दिन के बाद से फाखरा से 2-3 दिन मेरी मुलाकात ना हुई। उसके घर जाती तो उसकी अम्मा कहती कि वो सो रही है, जबकि मेरे घर भी उसने आना छोड़ दिया था। कॉलेज भी वो पिछले 2 दिन से नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी और कुछ इस वजह से भी मुझे परेशानी थी। मुझे आतिफ से बात करनी थी और मेरे पास तो फोन था नहीं। मैं फाखरा के फोन से उससे बात करती थी और फाखरा पिछले 3 दिन से मेरे घर नहीं आई थी और मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। पहले तो वो रोज शाम को आकर मुझे सारी कहानी बताती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। मैं इस तरह से उसका इंतजार करती रही और 5 दिन गुजर गए। फिर फाखरा ने दोबारा से कॉलेज आना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो बहुत चुप चुप और खामोश रहती थी। मैं कोई भी सवाल करती तो एक तरह से उसका जवाब ना देती। मुझे लगा कि शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है। बहुत मर्तबा पूछा भी, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। जब एक दिन वो मेरे घर आई, उस दिन वो बहुत ही परेशान थी। परेशान तो मैं उसे पिछले कुछ दिनों से देख रही थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई थी। मेरे पूछने पर वो छुपा जाती, लेकिन आज वो खुद ही मेरे पास आई और उसने सारी कहानी मुझे खुलकर बता दी। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि जब वो अपने आशिक से मिलने गई थी तो उसने उसके साथ जबरदस्ती कर डाली। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उसे मोहब्बत के वास्ते देता रहा और इसी तरह से उन दोनों में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थी, लेकिन अब उसकी परेशानी मजीद बढ़ गई है क्योंकि वो हामला हो गई थी और अब अगर उसके घर वालों को इस बात का इल्म हो गया तो वो लोग इसे जान से मार देंगे। वो बहुत रो रही थी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि मैं कुछ भी करके उसकी मदद करूं। एक मैं ही तो उसकी सबसे अच्छी सहेली थी और वो मुझे हर बात बताती थी। अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है तो मेरे अलावा उसकी कौन मदद कर सकता है। उसने मुझसे कहा कि मैं तो बहुत सारे राज पहले से जानती हूँ, क्योंकि हमारे घर तो औरतें ऐसे मसाइल लेकर आती रहती हैं। मैं ही कोई उसका हल निकाल दूं और उसकी मदद करूं, उसे इस मुश्किल से निकाल दूं। मुझसे उसका रोना धोना देखा न गया। आज तक उसने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया था। वो मेरे लिए मेरी बहनों की तरह ही थी। उसने हमेशा मुझे अपनी बहन समझकर अपनी हर चीज मुझसे बांटी थी। कभी उसने मेरे साथ कोई फर्क नहीं किया था। अपनी हर चीज उसने हमेशा मुझे इस्तेमाल करने के लिए दी थी। तो ऐसे में अब मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं अपनी सहेली की इस मामले में मदद करती। मैं उसे इस तरह परेशानी में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसे तसल्ली दी और ये कहा कि वो फिक्र न करे, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा के पास उसका कोई न कोई हल मौजूद होगा। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे समझाया कि उसे रोने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे कहा कि वो आज रात को 12 बजे हमारे घर आ जाए, मेरी अम्मा के पास आ जाए। जिस तरह मेरी अम्मा दूसरी औरतों के मसाइल हल करती हैं, इस तरह तुम्हें भी इस मुसीबत से निजात दिला देगी। मेरी इस बात से उसे थोड़ी सी उम्मीद मिली थी। मैंने उसे कहा था कि वो फिक्र न करे, मैं अम्मा से इस बारे में बात करके पहले ही उन्हें सब कुछ बता दूंगी और वो यकीनन इस मामले में उसकी मदद करेंगी। वो मुतमईन होकर अपने घर चली गई और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब मेरे लिए सबसे मुश्किल काम अम्मा को ये सारी सच्चाई बताकर उन्हें इस काम पर राजी करना था कि वो मेरी दोस्त की मदद करें, लेकिन उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती थी। जैसे ही अम्मा घर आई तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और उनसे कहा कि वो कुछ भी करके मेरी सहेली की मदद करें। अम्मा ने कहा कि वो उसकी मदद कर देंगी, मैं उसे बुला लूं, जबकि मैंने अम्मा से कहा कि मैंने उसे पहले ही रात 12 बजे घर आने के लिए कह दिया है। जैसे ही वो रात 12 बजे मेरे कहने के मुताबिक अम्मा के पास आई तो अम्मा उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई, जबकि मैं बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर मुझसे रहा ना गया और मैं भी अम्मा के पीछे उनके कमरे में चली गई। जब अम्मा ने उसे बेहोश कर दिया और खुद बाहर चली गई, मैं ये समझी कि शायद किसी काम से गई होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन जब वो वापस आई तो उनके साथ एक लड़का था। उस लड़के को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो तो आतिफ का वही दोस्त था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो अम्मा को कैसे जानता था और वो हमारे घर किस लिए आया था? मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मेरी अम्मा को सारी बात ना बता दे और मुझे देखते ही कहीं वो मुझे पहचान ना ले और यहीं पर सारी कहानी कहीं अम्मा को ना बता दे। मैं फौरन से एक तरफ हो गई और मैंने अपना चेहरा छुपा लिया।
फौरन से ही मैं कमरे से बाहर निकल आई और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैं ये समझी कि अम्मा ने कहीं इस लड़के को कुछ मंगवाने के लिए बुलाया होगा। हो सकता है वो मेरी अम्मा को जानता हो। इसी डर से मैं वहाँ से भाग गई, कहीं वो मेरे और आतिफ के बारे में सब कुछ अम्मा को ना बता दे। और काफी देर इसी तरह से अपने कमरे में बैठी रही, इंतजार करती रही कि अम्मा खुद ही मुझे बुला लेंगी। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और कमरे में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। जब मैं सुबह उठी तो मैं भागकर अम्मा के कमरे में गई। जब मुझे फाखरा का ख्याल आया, मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने कहा कि वो तो रात को ही अपने घर वापस चली गई थी और उसका मसला भी हल हो गया है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं। जब मैंने अम्मा से उस लड़के के बारे में पूछा तो अम्मा ने कहा कि अम्मा ने उससे कुछ मंगवाने के लिए बुलाया था। कोई दवाई थी जो उन्हें मंगवानी थी, इसीलिए बुलवाया था। वो उसे जानती हैं और वो अम्मा के छोटे मोटे काम पहले भी करता रहता है। मैंने भी ज्यादा सवाल ना किया कि कहीं अम्मा को मुझ पर शक ना हो जाए। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो अम्मा ने मुझे रोक दिया, कहा कि आज मैं उनके साथ बाजार जाऊंगी, आज वो मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलवाएंगी। उन्होंने पैसे जमा किए थे और काफी वक्त से सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छी चीज दिलवाएं। आज वो मुझे अपने साथ बाजार लेकर जाएंगी। मैं खुशी खुशी तैयार हुई और अम्मा के साथ बाजार चली गई। मैंने अपनी पसंद की बहुत सारी चीजें खरीदी और हम घर वापस आ गए। मैं इंतजार करती रही कि फाखरा घर आए और उसे मैं सारी चीजें दिखाऊं, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो मेरे घर नहीं आई। सोचा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए नहीं आई। मैं 2 दिन उसका इंतजार करती रही, लेकिन ना वो घर आई और ना ही कॉलेज। अचानक से एक खबर सुनने को मिली कि फाखरा 2 दिन से लापता है। कुछ मोहल्ले की औरतों का कहना था कि वो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई है, लेकिन उसके माँ बाप का कहना था कि वो ऐसी लड़की नहीं है, वो किसी के साथ घर से भाग नहीं सकती। लेकिन सब औरतों का यही कहना था कि वो रात के अंधेरे में घर से गायब हुई है, तो ऐसे में वो खुद ही अपनी मर्जी से गई होगी। वो दोपहर के वक्त गली मोहल्ले से अगवा नहीं हुई कि जिसे कोई जबरदस्ती उठा कर ले गया हो। जब कोई लड़की रात के अंधेरे में अपने घर से गायब होती है तो उसका मतलब यही होता है कि वो अपनी मर्जी से घर से गई है। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती थी कि फाखरा किसी लड़के के साथ घर से नहीं भागी, क्योंकि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो एक ही लड़के से बात करती थी और एक ही लड़के को पसंद करती थी, और उस लड़के ने पिछले दिनों में जो कुछ उसके साथ किया था, उसके बाद तो वो उसके साथ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो ऐसे में वो किस लड़के के साथ घर से जा सकती है? तो क्या इसका मतलब ये था कि उसे वाकई में अगवा किया गया था? लेकिन कैसे? जब मैंने उसके घर जाकर उसकी अम्मा से इस बारे में पूछा तो उसकी अम्मा ने मुझे बताया कि वो उस दिन से लापता है। दिन में तो वो घर पर ही मौजूद थी, रात को सोने के वक्त भी वो घर पर थी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो वो घर पर नहीं थी। और उसी रात वो हमारे घर मेरे बुलाने पर आई थी, लेकिन ये बात मैंने किसी को ना बताई और खामोशी से घर वापस आ गई। उसका मतलब ये था कि वो उस रात अपने घर वापस नहीं गई थी, मगर अम्मा ने तो मुझसे ये कहा था कि वो घर वापस चली गई थी। अगर वो अपने घर नहीं गई थी तो फिर वो कहाँ चली गई? ये बहुत बड़ा सवाल था। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा घबरा गईं और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूं कि वो हमारे घर आई थी, ऐसे सारा इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। अम्मा ने कहा कि यहाँ से तो वो चली गई थी, उसके बाद उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है और किसके साथ गई है। दिन इसी तरह से गुजरते गए और फाखरा के बारे में किसी को कुछ पता न चला कि वो कहाँ चली गई। एक दिन इसी तरह से आतिफ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं खामोशी से उससे मिलने के लिए चली गई। जब वो और उसका वही दोस्त जो हमारे घर आया था, वो लोग मुझे बेहोश करके अपने साथ ले गए और उन्होंने ले जाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं जानती थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेगा, इसीलिए मैंने वो खाना खाया ही नहीं था जो वो मेरे लिए लाया था। मैं बेहोश नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा ड्रामा किया। मैं सब कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। जब वहाँ जाकर देखा तो मेरी सहेली पहले से वहाँ पर मौजूद थी। मुझे सारी कहानी समझ आने लगी थी। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि वो पिछले 2 महीनों से यहाँ पर कैद है। वही लड़का उसे यहाँ लेकर आया था जो आतिफ का दोस्त था, और वो उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि वो यहाँ कैसे पहुंची। तो क्या इसका मतलब ये था कि मेरी माँ ने मेरी सहेली को उस लड़के के साथ यहाँ भेज दिया था? मेरी अम्मा ऐसे कैसे कर सकती थी? फाखरा ने मुझे बताया कि आतिफ अच्छा लड़का नहीं है और ना ही उसका दोस्त अच्छा लड़का है। वो दोनों मिलकर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसाते हैं और उन्हें यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पर उन्हें पैसों के लिए आगे बेच दिया जाता है। उसने मुझसे कहा कि मुझे आतिफ की बात मानकर उससे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे बताया कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि मैं सच तक पहुंच सकूं, और मुझे सारी सच्चाई मालूम हो गई थी। मैं अपने घर से ऐसी चीजें लेकर आई थी जिससे यहाँ निकलने में आसानी हो। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की पर जो जाली लगी हुई थी
उसको मैंने काटना शुरू कर दिया और 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार मैं उस जाली को काटने में कामयाब हो गई थी। मैं और फाखरा हम दोनों कमरे की कैद से निकल आई थी। अब हम दोनों का रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था। मैं उसे भी अपने साथ ले गई और पुलिस को जाकर हम लोगों ने सारी हकीकत बता दी कि किस तरह से वो दोनों लड़के मिलकर लड़कियों को बेवकूफ बनाते थे। पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया। जब उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया गया तो उनसे सारा सच उगलवा लिया गया। फिर कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उन दोनों ने बताया कि इस काम में वो अकेले शामिल नहीं है, बल्कि मेरी माँ भी उस काम में शामिल है और मेरी अम्मा ने ही आतिफ के दोस्त को घर पर बुलाया। मेरी अम्मा ने ही मेरी सहेली फाखरा की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि उसे बेच दिया था और उस लड़के के साथ यहाँ से भेज दिया। ये सिर्फ उन्होंने पहली बार नहीं किया था, बल्कि इससे पहले भी वो इस किस्म के काम कर चुकी थी। जो भी खूबसूरत लड़की उन्हें नजर आती थी, इसी तरह से धोखे से उसे अपने घर बुला लेती या फिर किसी और तरीके से उस लड़की को उस जगह तक पहुंचा देती। फिर उसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते थे। ऐसे ही तो वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करती थी। मैं जो ये सोचती थी कि मेरी अम्मा काम करती हैं, उस काम के उन्हें पैसे मिलते हैं जिससे वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, लेकिन मैं गलत थी। मेरी माँ तो कोई और ही काम करती थी जिसके उन्हें इतने पैसे मिलते थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस किस्म का कोई काम कर सकती हैं। मुझे उनसे नफरत महसूस होने लगी थी। मेरी अम्मा ने मुझे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ये सब कुछ उन्होंने मेरी खुशी के लिए किया था, ताकि जिंदगी में कभी भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस ना हो और ना मैं किसी चीज के लिए तरसूं। लेकिन मुझे इन सारी चीजों से नफरत हो रही थी जो उन्होंने मुझे दिलवाई थी, जो मैंने बहुत शौक से खरीदी थी। आज उन सारी चीजों से मुझे घिन महसूस हो रही थी कि वो किन पैसों से खरीदी गई थी। मेरी माँ लड़कियों के सौदे करती थी और अपनी खुदगर्जी में आकर उन्हें आगे बेच देती थी और आखिर में उनकी अपनी बेटी के साथ भी वही होने जा रहा था। वो तो मेरी समझदारी थी जो मैं इस दलदल से निकल आई और उसके साथ मैंने अपनी दोस्त को भी बचा लिया, वरना मेरी माँ के किए का सारा अंजाम मुझे भुगतना पड़ता। मेरी माँ आज तक दूसरों की बेटियों के साथ जो कुछ करती आई थी, आज वो सब कुछ मुझे भुगतना पड़ रहा था। मैंने जिस शख्स से मोहब्बत की थी वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला था और उसी ने मुझे धोखा दिया था। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं वहाँ से सही सलामत बचकर वापस आ गई। मेरी माँ को भी पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मैंने अपनी सहेली से अपनी अम्मा के किए की माफी मांगी और उसने मुझे माफ कर दिया था। फाखरा के घर वालों को सारी हकीकत मालूम हो गई थी और उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि कहीं न कहीं गलती माँ बाप की भी थी, जिन्होंने अपनी बेटी की कभी खबर ही नहीं ली थी कि वो अपनी जिंदगी में क्या करती है और क्या नहीं, वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किन लोगों से मिलती है। कभी भी उन्होंने ये बात जानने की कोशिश ही नहीं की थी और इसी वजह से आज जो कुछ भी हुआ था उन्हीं की वजह से हुआ था। उन्हीं की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की जिंदगी का इतना नुकसान हुआ था। मगर अब जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। फाखरा जिस लड़के को पसंद करती थी, जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया था, आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपने घर वालों को लेकर फाखरा के घर आ गया और वो उससे शादी करके इज्जत से उसे रुखसत करके अपने घर ले जाना चाहता था और अपनी गलती को सुधारना चाहता था। जब उसने फाखरा के साथ ये सब कुछ किया था, उसके बाद वो एक लम्हे के लिए भी सुकून में नहीं था। फाखरा के घर वालों ने भी यही बेहतर समझा कि उसे उसी लड़के के साथ रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ऐसे में वो किस किस के सवालों के जवाब देते। बेहतर यही था कि वो उसके साथ रुखसत होकर अपने घर चली जाती। इसीलिए उसके माँ बाप ने सादगी से उस लड़के के साथ उसका निकाह कर दिया और उसे उस घर से रुखसत कर दिया। वो अपने घर चली गई थी और वो अपनी जिंदगी में खुश थी। अम्मा के जेल जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। फाखरा का भाई बहुत पहले से मुझे पसंद करता था, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था। फाखरा की शादी के वक्त उसने अपनी पसंद का इजहार किया तो उसके घर वालों ने मेरा निकाह अपने बेटे से करवा दिया, क्योंकि अब अम्मा के अलावा मेरा कोई था नहीं, मैं अकेली थी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से मेरा निकाह करवा दिया और मुझे अपने घर ले गए। अब मैं भी इज्जत से उनके घर में जिंदगी गुजार रही थी और पुरानी सारी बातों को भूल गई थी। ये बात मुझे समझ आ गई थी कि शादी से पहले की मोहब्बत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं। असल मोहब्बत वही होती है जो शादी के बाद होती है, और अगर कोई भी इंसान आपसे मोहब्बत का दावा करे तो उसकी मोहब्बत पर उसी वक्त यकीन करें अगर वो इज्जत से आपको रुखसत करके अपने घर ले जाए। उसके अलावा किसी भी शख्स की मोहब्बत पर भरोसा इंसान को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता। मेरी एक बेटी थी, मैं अपनी बेटी पर नजर रखती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले आतिफ जैसे दरिंदों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी, जो नासमझ और मासूम लड़कियों को मोहब्बत के झांसे में फंसाकर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते। इसीलिए मैं अपनी बेटी की हर छोटी से छोटी हरकत पर
نظر رکھتی تھی کہ کہیں وہ بھی میری اور فاخرہ کی طرح کسی غلط انسان کے جھانسے میں نہ پھنس جائے۔